Hello, hi and welcome learners. So today we are going to discuss some questions regarding JEE Mains and Advanced. Here, velocity is given v equal to 2t I cap plus t square j cap meter per second. So 8t equal to 1 second. Our velocity will become v equal to 2I plus j cap. So magnitude of the velocity is under the root 2 square plus 1 square. It will become under the root 5 meter per second. So after that our acceleration is dv upon dt. After differentiating we get 2I plus 2t j cap 8t equal to 1 second. It will be a equal to 2I plus 2j, so meter per second square. So our magnitude of acceleration will be under the root 2 square plus 2 square. It will be under the root 8 meter per second square. So for a dot v, it will be 2I plus 2j and dot product with v means 2I plus j. So it will become 4 plus 2 means 6 meter per second square. 6 meter cube per second cube. Okay, so our AT tangential acceleration will be a cos theta. Theta means a dot v upon v. So it will be 6 divided by under the root 5 meter per second square. We know that a square equal to a tangential का square plus a radial का square. So our a radial will be under the root a square minus a tangential square. So it will be under the root, what is a? A is under the root 8. 8 means 8 minus, and it will be 36 upon 5. So our AR will be 2 upon under the root 5 meter per second. After that our radial acceleration will provide motion, circular motion, so it will be v square upon r. So here r equal to v square upon ar. So finally we get r equal to v square means 5 and ar means 2 upon under the root 5 means r will be 5 root 2 5 root 5 upon 2 meter. So it is our r, it is our meter per second square. Okay, so we get the radius of the curvature of the path is the right options. And again the radial accelerations, the acceleration of the particle is, it is not a right option. Tangential acceleration, yeah, it is the correct option. So radial accelerations ar, what is ar? 2 upon root 5. So option C is the also correct option. Okay, so here B, C and D is the correct option. Next question, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, एक कार है, ठीक, यहाँ पे मैंने अज्यूम किया हमारा क्या है, एक कार है। ओके, ये कार का पिछला वाला हिस्सा है, ये कार का आगे वाला, और
ये कार हमारा रोटेट कर रहा है यहाँ से N1, ये N2 ऊपर की ओर और N1 ऊपर की ओर, और टोटल इसका ये क्या है जी पॉइंट, यानी सारा मास यहाँ कंटेन करेगा। तो यहाँ पे ग्रेविटी mg क्या लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, ये mg हो गया। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, ये भी हमारी a है। तो टोटल यहाँ पे यदि ये रोटेट कर रहा है तो N1 पे क्या लगेगा, हमारा फ्रिक्शन फोर्स, ये क्या लगेगा पीछे की ओर, और इस यही हमारा रोटेशन प्रोवाइड करेगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, mv²/r। r क्या है, रेडियस। ओके, सो यहाँ से टोटल हमें जो फ्रिक्शन फोर्स मिल गया वो mv²/r, और सेकेंड इक्वेशन क्या मिल गया, N1 + N2 = mg। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो टॉर्क होगा, यदि यहाँ पे इस पाथ को, ये जो बस है इसको विदाउट स्लाइड किए घूमने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, जो टॉर्क लगेगा, जो टॉर्क लगेगा कहाँ पे, एफ पे, ठीक है, वो एंड टॉर्क ऑफ N1 ये किसके इक्वल होना चाहिए, टॉर्क ऑफ N2 और प्लस, ओके, टॉर्क ऑन N2। ओके, ये टोटल इतने के इक्वल होना चाहिए, तभी ये हमारा N2 के अराउंड क्या कर रहा है, ये हमारा घूमेगा बेसिकली। तो इतना इसको मिनिमम मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि जो N2 की वैल्यू है वो N1 से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन में यदि हम N1 को निगलेक्ट कर दिए तो N2 इक्वल टू क्या मिल गया हमें, mg, और इस वाले इक्वेशंस में हम N1 को निगलेक्ट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टॉर्क ऑफ फोर्स इक्वल टू टाउ ऑफ N1 N2 सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस कितनी थी, कैपिटल H, अरे सॉरी स्मॉल h। तो स्मॉल h इक्वल टू टाउ क्या है हमारा, टाउ N2 क्या है, N2 की वैल्यू क्या है, g है, फोर्स की वैल्यू हमारी mg है, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा है a है। तो इतनी चीज़ें मिल गई हमें, ठीक। यहाँ से f की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, ये क्या आ जाएगा, mv²/r इंटू h इक्वल टू mg a। यहाँ से जो v की वैल्यू मिल जाएगी वो हमें क्या मिल जाएगी, √ARG/h। ओके, सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए। तो यहाँ से N2 is greater than N1, ऑप्शन B is the correct option, and the maximum velocity, okay, option D is the correct option। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से क्या कर रहा है, एक पार्टिकल ये कोन पे मूव कर रहा है और एंगल थीटा बना रखा है। तो यहाँ से नॉर्मल एक्ट करेगा हमारा किधर की ओर, इधर की ओर, ठीक है। ये इससे एंगल बनाएगा थीटा, ये नॉर्मल है, और इसके परपेंडिकुलर ये हो जाएगा एन साइन थीटा, और यहाँ पे एक्ट करेगा वेट mg नीचे की ओर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एन कॉस थीटा। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि हमें मिला एन साइन थीटा इक्वल टू mg। ओके, तो इसके बाद यदि हम केवल n की वैल्यू फाइंड करना चाहे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, n इक्वल टू mg कॉसेक थीटा। उसके बाद ये डिस्टेंस हमें दे रखी है कितनी, h। ओके, ये डिस्टेंस हमें h दे रखी है, और ये हमारा क्या है, रेडियस r है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा टेन थीटा। यदि हम ले तो हमें क्या मिल जाएगा, r/h। तो यहाँ से r इक्वल टू क्या मिल जाएगा, h टेन थीटा। तो आफ्टर दैट ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, n cos थीटा, जो n cos थीटा है वही हमें क्या प्रोवाइड करेगा, सर्कुलर मोशन, यानी n cos थीटा ही हमें प्रोवाइड करा है सर्कुलर मोशन। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, mr ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ से m r की वैल्यू क्या रखेंगे,
एच टेन थीटा और ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी हम एन की वैल्यू रख देंगे। एन की वैल्यू क्या है, एम जी कॉसेक थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू एम एच टेन थीटा ओमेगा स्क्वायर। आफ्टर दैट यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एम क्या होगा हमारा, पहले कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा, तो कोसेक थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड जी इक्वल टू एच टेन थीटा ओमेगा स्क्वायर। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा, और ये इधर जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, यानी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी अपॉन एच टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर द रूट जी अपॉन एच एंड 1/10 थीटा, ठीक है, 1/10 थीटा। आफ्टर दैट टी की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई अंडर द रूट 2 पाई 2 पाई वेट अ मिनट 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 पाई और ये हो जाएगा हमारा एच बाई जी टेन थीटा। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, जो टाइम पीरियड है वो हमारा प्रोपोर्शनल है किसके, अंडर द रूट एच से के, और सेकेंड क्या है, जो टाइम पीरियड है वो प्रोपोर्शनल किसके है, टेन थीटा, यानी जब थीटा बहुत स्मॉल हो तो टी प्रोपोर्शनल टू थीटा, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन टाइम पीरियड ऑफ ए रिवोल्यूशन इंक्रीज इफ एच इंक्रीज कीपिंग थीटा फिक्स्ड। ओके, टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा जब हम क्या करेंगे, एच को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। टाइम पीरियड रिवोल्यूशन ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीज इफ थीटा इंक्रीज कीपिंग एच कांस्टेंट। हाँ, एच को यदि कांस्टेंट कर दिए तो हमारा थीटा बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड भी हमारा बढ़ेगा। नॉर्मल फोर्स ऑन द पार्टिकल बाई अ सरफेस ऑफ द कोन इज एम जी कॉस थीटा। ये गलत है हमारा ऑप्शन, ये क्या होगा, एम जी कॉसेक थीटा। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बॉल ए ऑफ मास एम स्ट्राइक अ स्टेशनरी बॉल बी ऑफ मास एम, ठीक है। एक स्मॉल मास क्या हो रहा है, एम, ये वी वेलोसिटी से, मान लिया इसका वेलोसिटी क्या है, v1 वेलोसिटी से, इसकी वेलोसिटी v दी गई है, ठीक है क्वेश्चन में। तो ये जा रहा है और यहाँ से इससे कोलाइड कर रहा है कैपिटल एम के मास से, जो कि रेस्ट में रखा गया है v2 इक्वल टू 0। अच्छा, इसके बाद कोलिजन के बाद क्या हो रहा है, हमारा जो स्मॉल मास का है वो क्या कर रहा है, v1 प्राइम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और कैपिटल मास क्या है, v2 प्राइम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए यहाँ से, आफ्टर कोलिजन क्या होता है, आफ्टर कोलिजन ये इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो आफ्टर कोलिजन इलास्टिक। ओके, तो इलास्टिक कोलिजन के लिए हम जानते हैं v1 प्राइम की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल एम माइनस कैपिटल एम डिवाइडेड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, और ये क्या हो जाता है p, और बाकी सारे टर्म्स जीरो हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये हमें क्या मिलेगा ओवरऑल, यहाँ से एक और चीज़ दे रखी है, जो v1 प्राइम है वो कोलिजन के बाद क्या हो जाता है, 1/3 ऑफ v हो जाता है, यानी यहाँ से हमें क्या मिला, v1 प्राइम अपॉन v इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/3। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सेम चीज़ मिलेगा, v1 प्राइम अपॉन v। तो यहाँ से यदि हम स्मॉल एम को कॉमन ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कैपिटल एम बाई स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 1 प्लस कैपिटल एम बाई स्मॉल एम, ठीक है। और ये इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 1/3। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा फाइनली, 3 - 3 कैपिटल एम बाई स्मॉल एम इक्वल टू 1 प्लस कैपिटल एम बाई स्मॉल एम। तो यहाँ से ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा, ये इसको इधर भेजेंगे, 1 को इधर भेजेंगे तो 2 इक्वल टू, और ये 4 कैपिटल एम बाई स्मॉल एम। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम बाई स्मॉल एम की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/2। तो ऑप्शन बी क्या है करेक्ट ऑप्शन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, ठीक है, और ये बेसिकली 2 बार ग्राउंड पे टकरा रहा है, ठीक।
तो T1 T2 दिया गया है, यानी यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन किया, यहाँ से गिरा और फिर यहाँ से ये समथिंग यहाँ तक गया। तो इस डिस्टेंस को हम लोग h1 कह लेते हैं, ठीक। और इस डिस्टेंस को हम लोग h2 कह लेते हैं, और ये वाला रेंज हम लोग R1 कह लेते हैं, और इस वाले रेंज को हम लोग क्या कर लेते हैं, R2 कह लेते हैं, ठीक। यहाँ से यहाँ तक के लिए टाइम क्या है, T1 है, और यहाँ से यहाँ तक के लिए टाइम क्या है, T2 है। ये हमारा v वाला पार्टिकल था, v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो इसका वर्टिकली कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u v cos, यहाँ से एंगल थीटा था तो ये क्या हो जाएगा, v sin थीटा। ओके, तो यहाँ से हमें इसको मान लेते हैं यू वाई, और यहाँ पे ये जो हमारा जा रहा था, ठीक, ये थीटा प्राइम एंगल किसी और एंगल से जाएगा, थीटा प्राइम, तो ये वी प्राइम था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको यू प्राइम वाई मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ से अब हम क्या फाइंड करेंगे, हमें फाइंड करना क्या है, वेट अ मिनट, किधर गया क्वेश्चन हमारा, या इधर है। तो t की वैल्यू क्या होती है, हम सब जानते हैं t की वैल्यू क्या होती है, 2u साइन थीटा अपॉन जी, और u साइन थीटा यानी v साइन थीटा क्या है, हमारा u आई है। तो ये जो t हो जाएगा यहाँ से प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, u आई, और तो T1 अपॉन T2 क्या हो जाएगा, यहाँ से T1 अपॉन T2 इक्वल टू यू वाई अपॉन यू वाई प्राइम। और एक ही चीज़ हम जानते हैं, जो ई होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये क्या होता है, कोलिजन के बाद की जो वेलोसिटी होती है, यानी यू प्राइम वाई जिसको हमने माना है, और उसके पहले की वेलोसिटी क्या है, यू वाई। तो यहाँ से ये 1/e आ जाएगा, पहला चीज़ मिल गया हमें, ठीक है। अब सेकेंड के लिए हम लोग क्या जाएंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, जो अब h के लिए सॉल्व करते हैं। जो h होता है वो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये क्या है, यहाँ से हमें क्या मिला, जो h प्रोपोर्शनल उठता है ये स्क्वायर है, यानी स्क्वायर का क्या मतलब क्या है कि ये यू वाई के स्क्वायर है, ठीक है। यानी h1 अपॉन h2 क्या हो जाएगा, यू वाई स्क्वायर अपॉन यू प्राइम वाई का स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा, 1/e²। ये दूसरा इक्वेशन हमें मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड क्या है हमारा, रेंज फाइंड करना है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा अपॉन जी। तो अच्छा, ये 2 भी है साथ में, तो यहाँ से हमें क्या मिला, जो r प्रोपोर्शनल होगा किसके, ये क्या है हमारा u ऑफ y है, तो u y के, और सिमिलरली r1 अपॉन r2 क्या हो जाएगा हमारा, u y अपॉन u y प्राइम, और ये किसके इक्वल है, 1/e के इक्वल है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए क्या होगा, हाँ ए बी सी इसको डिनोट किया गया है, तो ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन क्या है हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक जो ब्लॉक है 1 kg का, वो 2 kg की ओर पुश किया जा रहा है, ठीक है, और इस 6 मीटर डिस्टेंस है, ठीक। तो जो कोलिजन के बाद हमारी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 6 मीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो ये 6 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, और कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यदि ये 4 मीटर पर सेकेंड हुआ, तो ये 6 मीटर पर सेकेंड था, तो इधर की ओर ये 2 मीटर पर सेकेंड की ओर से मूव करेगा, ठीक। तो क्योंकि ये 6 मीटर पर सेकेंड था, 4 मीटर पर सेकेंड इसको दे दिया, तो 2 मीटर पर सेकेंड इसके पास रह जाएगा। अच्छा, तो पहले इसका अच्छे से फिगर ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ये बिफोर है, ठीक है, बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन में क्या हो रहा है, ये हमारा बॉक्स है, ठीक। ये 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर जा रहा था, इस बॉक्स को इसने टक्कर मारा, अभी अभी नहीं मारा है, ये आफ्टर कोलिजन मारेगा, ठीक, आफ्टर
कोलिजन। ये क्या है, अब इस बॉक्स को ये टक्कर मार चुका है तो ये बॉक्स 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर जाएगा। ये यदि मोमेंटम इसका कंजर्व रहेगा तो ये 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक, तो यहाँ से रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई, रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। अच्छा, पहले वीसीएम निकाल लें। वीसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो पहले इसकी वेलोसिटी, मास कितना था इसका, यहाँ से मास क्या हो जाएगा 1 और 6 था, ये तो 0 हो गया हमारा क्योंकि वेलोसिटी इसकी 0 थी। और ये क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 मीन्स क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, यानी ये टोटल हमें क्या मिल गया 6 डिवाइडेड बाई 3 यानी 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ अ सेंटर ऑफ मास 2 मीटर पर सेकेंड, यानी ये तो सही ऑप्शन है। ठीक, अच्छा ई की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। ई की वैल्यू क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, यहाँ से जब सेपरेट हो रहे थे तो वेलोसिटी कितनी थी v2 माइनस वी1 यानी 4 माइनस 2 माइनस 4 माइनस माइनस 2 यानी ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और अप्रोचिंग के समय भी वेलोसिटी क्या थी 6 थी, तो 6/6 ये हो जाएगा 1। ई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे 1, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी क्या होंगे, करेक्ट ऑप्शन होंगे। ठीक है, और अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक यूनिफॉर्म रॉड है। ठीक है, एक जिसका क्या है लेंथ क्या है 6 है और 8 मीटर है। ठीक, और ये क्या कर रहा है एक स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस पे। अब यहाँ से 2m का मास नीचे आया और यहाँ से m मास ऊपर गया। ये वेलोसिटी v से नीचे की ओर आ रहा है और ये 2v वेलोसिटी से ऊपर की ओर जा रहा है। इसने इसको मारा, ठीक है, टक्कर मारा, तो यहाँ से ये जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी वेलोसिटी हमेशा 0 रहेगी क्योंकि ये इसी के अबाउट क्या करेगा रोटेट करेगा, यानी पहला ऑप्शन यहाँ से हमारा सही हो गया। और बाकी सब ऑप्शंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से जो होगा लीनियर मोमेंटम इस सिस्टम का तो कंजर्व ही रहेगा। ठीक है, यानी एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। ठीक, अच्छा, और लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है आई ओमेगा के, तो उसी का यूज करेंगे। पहले लीनियर मोमेंटम क्या है, ये 2m मास हमारा गिरा, ठीक है, और वेलोसिटी v डिस्टेंस a, और यहाँ से फिर हमारा m मास गिरा जिसकी 2m मास गिरा, वेलोसिटी v डिस्टेंस a। ठीक, और यहाँ से m मास गिरा, वेलोसिटी m मास गिरा, वेलोसिटी 2v, और डिस्टेंस क्या है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a, और ये क्या होगा आई ओमेगा के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि एल इक्वल टू आई ओमेगा होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा ये 4 और ये 2 और ये क्या हो जाएगा 4, यानी 6m v है, ये किसके इक्वल होगा आई ओमेगा के। तो सबसे पहले टोटल यहाँ पे कितने मासेस हैं ये देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। कितने सिस्टम से, टोटल 3 सिस्टम से। पहला रॉड, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे। फिर किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे 2m मास का। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2m मास का, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ m मास का और ओमेगा। तो जो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है m, रॉड का मास कितना है 8m है ना। तो 8m, और ये क्या हो जाएगा ml स्क्वायर, और लेंथ इसकी कितनी है 6 है। ओके, स्क्वायर अपॉन 12 होता है। और 2m मास के लिए क्या हो जाएगा मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो मास किसका है इतना 2m और डिस्टेंस क्या है a स्क्वायर। और सेकंड वाले के लिए क्या हो जाएगा m मास के लिए, मास क्या है इसका m और डिस्टेंस क्या है यहाँ पे 2a, तो 2a का स्क्वायर। ओके, और यहाँ से ओमेगा, और ये किसके इक्वल है 6m va के इक्वल। अच्छा, इसको जब फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6m va, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल जो होगा वो किसके इक्वल होगा 30m a स्क्वायर। इसको यदि सॉल्व किए तो हमें इतना मिलेगा। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ओमेगा। ठीक, यहाँ पे आई टोटल कितना हो जाएगा 30m a स्क्वायर। ओके, फिर उसके बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ से यदि हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड करना चाहे तो m a स्क्वायर m और m कैंसिल आउट हो जाएगा। टोटल ओमेगा की वैल्यू फाइंड करना चाहे तो ये क्या आ जाएगा v अपॉन 5
ए एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, अच्छा, ये पता चल गया तो हमें एनर्जी भी पता चल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और हाफ आई की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी 30 ma² होता है, और ओमेगा की वैल्यू क्या है v²/5a², ये क्या होगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5 m v²। ठीक, तो ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट है इसके देख लेते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी भी क्या है करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो स्मॉल कैंप है, यहाँ पे एक स्मॉल कैंप है और एक ये हुप के सहारे क्या हो रहा है, मोशन कर रहा है इस पे। तो हमें इसमें देखना है कि बताना है क्या है इसका एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द एक्सीलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका अच्छे से डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया हमारा सर्कल, और यहाँ से हमारा हुप क्या कर रहा है, यहाँ पे मान लिया हमारे हुप है पी। ठीक है, और ये मोशन कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हमने ले लिया पॉइंट ए। अच्छा, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमने 0 0 ले लिया इनिशियल, और पॉइंट्स बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये रेडियस क्या है इसका आर ए। ओके, अच्छा, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से सी है। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट पी एज्यूम किया, तो यहाँ से ये एंगल कितना बना रहा था, थीटा। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, पहले हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, वो जल्दी से फाइंड कर ले। सेंटर ऑफ मास ये क्या हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये कितना हो जाएगा हुप। ठीक है, मास m1 क्या है, मास ऑफ हुप। तो ये दे रखा है मास ऑफ हुप कितना है, मास ऑफ हुप 3m है, और मास ऑफ द क्लैंप क्या है m है। तो ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इसका r1 जीरो है, और ये क्या हो जाएगा क्लैंप के लिए मास कितना है m, और r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा 3+1, यानी m, ये क्या हो जाएगा r/4। यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है r/4, तो ऑटोमेटिकली ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सी भी 3r/4। यानी हमें क्या मिल गया, ए सी मिल गया, ये क्या है r/4, और सी बी मिल गया, ये क्या है हमारा 3r/4। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, एंगुलर एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो एंगुलर एक्सीलरेशन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, अल्फा इक्वल टू क्या होता है टॉर्क एट अ पॉइंट पी। ठीक, और यहाँ से क्या हो गया आई एट अ पॉइंट पी। ठीक है, अच्छा, आई पी क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या है आई ऑफ हुप प्लस आई ऑफ ये जो हमारा ब्लॉक है, उन दोनों को कॉम्बिनेशन टोटल। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू टॉर्क कितना लगेगा इस पे, इसका वेट क्या है यहाँ से एक्ट कर रहा है एम जी, तो एम जी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इसकी आर, तो एम जी आर, और ये क्या हो जाएगा हुप का मास कितना है 3, और 3m, और डिस्टेंस कितनी है इसकी आर 3m r² स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2, और ये 2 मल्टीप्लाई बाई ये जो बॉक्स है वो हमारा क्या है mr²। ठीक है, तो यहाँ से ओवरऑल हमें क्या मिल गया, अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी mg/r/, ये क्या हो जाएगा 3 2 6 8 mr²। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई हमें, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी g/8r। ओके, सो हमें फाइनली एंगुलर एक्सीलरेशन की वैल्यू मिल गई। अच्छा, अब यहाँ से हम देखें तो ए बी एक्ट करेगा, ठीक, एक्सीलरेशन, और यहाँ से एंगल कितना है, ये एंगल हमारा 45 होगा। ठीक, तो ये भी एंगल हमारा क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 45, तो ये 45 ही होगा बेसिकली, ये क्या होगा हमारा 45 डिग्री, क्योंकि ये और ये क्या है हमारे सेम है, तो सेम एंगल यदि सेम लेंथ है तो उनके सामने के एंगल भी सेम होते हैं, यानी ये भी 45 होगा, और थीटा की वैल्यू हमारी बेसिकली 45 ही होगी। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा ए बी कॉस
45 और नीचे क्या हो जाएगा ए बी साइन 45 डिग्री। अच्छा, तो सबसे पहले हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। जो ए बी की वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारी बेसिकली परपेंडिकुलर लेंथ पी बी हो गया और अल्फ़ा। तो पी बी की वैल्यू कितनी है यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। पी बी क्या है, ये आर है, ये आर है, तो पी बी क्या हो जाएगा √2 आर। ओके, पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा √2 आर और अल्फ़ा की वैल्यू क्या है G/8 आर। आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें ए बी की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से G√2/8। ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा ए बी कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ए बी क्या मिलेगा, ए बी कॉस 45 डिग्री क्या मिलेगा G/8। अच्छा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा ए बी साइन 45 डिग्री। सो साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है 1/√2, तो √2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या मिलेगा हमें G/8। तो दोनों सेम मिले, यानी ये ऑप्शन बी में क्या कर रहा है द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ बी आर सेम। ये भी सही है। और एंगुलर एक्सेलरेशन हमें क्या मिला है G/8 आर। ऑप्शन ए भी क्या है हमारा सही है। तो ये गलत ऑप्शन है और ये भी क्या है हमारा डिफरेंट है, ये भी गलत ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक डिस्क है जिसका मास कैपिटल एम है और रेडियस क्या है इसका आर है। ठीक है, ये मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन में क्या कर रहा है डिस्क हमारा मूव कर रहा है। ठीक, और ये कौन सा मोशन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है। ठीक, तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क एट अ इंस्टेंट सोन इज। ठीक है, तो पॉइंट ओ और पॉइंट ए पे हमें क्या करना है इसका सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पॉइंट यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा। जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है उसकी वैल्यू क्या होती है आई सी ओमेगा। ठीक है, क्या होती है इसकी वैल्यू आई सी ओमेगा और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है बेसिकली इसकी वैल्यू क्या होती है आई सी ओमेगा। अच्छा, ये दे रखा है इस पॉइंट के लिए, ये डिस्क है तो इसके लिए क्या होनी चाहिए हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक, तो अब हमें फाइंड करना है बेसिकली किसके लिए ओ पॉइंट पे। स्टार्ट करते हैं, पॉइंट ओ और पॉइंट ए के लिए फाइंड करना है। पॉइंट ओ पे क्या होगा परपेंडिकुलर पॉइंट ओ पे सबसे पहले आई सी ओमेगा होगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ एम। वेट अ मिनट, पॉइंट ओ पे सबसे पहले एम वी सी आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एम आर वी। ठीक है, आर एल इक्वल टू क्या होता है एम वी आर। ठीक, तो यहाँ से यदि हम इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहे पॉइंट ओ पे तो क्या हो जाएगा, ये क्या है पहला वाला, ये इस फिगर में दिख रहा है ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अच्छा, जब हम पॉइंट ओ पे फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये क्या होगा आर परपेंडिकुलर दे ले रहे हैं, यानी ये क्या हो जाएगा बेसिकली क्लॉकवाइज हो जाएगा क्योंकि हमने डायरेक्शन यहाँ पे क्या किया चेंज कर दिया। ओके, आर परपेंडिकुलर ले लिया ना। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारा एम। ठीक है, और वी क्या होता है आर ओमेगा और आर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दे रखी है 3 आर यहाँ से दे रखी है। तो ये क्या हो जाएगा 3 आर और हमें क्या मिल जाएगा टोटल यहाँ से पॉइंट ओ के अबाउट क्या मिल जाएगा 3 m r² ओमेगा। अच्छा, ये एक है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो टोटल हमारा जो एल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3 m r² ओमेगा माइनस हाफ m r² ओमेगा और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 565/2 m r² ओमेगा और इफेक्टिव कौन सा है क्लॉक वाइज। ओके, वेट अ मिनट, क्लॉक वाइज। सो
पॉइंट ओ पे कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 5/2 mr² ओमेगा। ओके, आफ्टर दैट पॉइंट ए की बात कर लेते हैं। पॉइंट ए पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, 0। ओके, यहाँ से देखिए, यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसी के रिस्पेक्ट में कितना है, 0 है। तो आर परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, यानी टोटल हमारा जो एल आएगा केवल हमारा सेंटर ऑफ मास के कारण आएगा, जिसकी वैल्यू क्या है, ½ mr² ओमेगा, और ये क्या है, एंटी क्लॉक वाइज है। ओके, तो पॉइंट ए ½ mr² ओमेगा। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दो बहुत दूर पे क्या रखे हैं, ऑब्जेक्ट रखे गए हैं, एक m मास का और एक 4m मास का। ठीक है, अच्छा, इनिशियल कंडीशन में दोनों बहुत दूर रखे गए हैं। ठीक है, और जो एनर्जी होती है टोटल हमारी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, उन दोनों का टोटल सम क्या होता है, 0 होता है। ठीक, यानी हमारी जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, कंजर्व होती है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। और जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है वैसे ही काइनेटिक एनर्जी हमारी घटने लगती है। ठीक है, और यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू किससे प्रोवाइड होगा हमें, पोटेंशियल एनर्जी से। यानी पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगा, हमारे काइनेटिक एनर्जी के। तो पोटेंशियल एनर्जी जब दो पार्टिकल्स दूर रखे गए हैं तो क्या होगा, जी। और पहले पार्टिकल का मास कितना है, m, और दूसरे पार्टिकल का मास कितना है, 4m, डिवाइडेड बाई उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, लेट से r, और ये इसके काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो 1/2। अच्छा, यहाँ पे दो मास सिस्टम दिए गए हैं तो हम इसको यहाँ पे टू मास सिस्टम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और रिड्यूस मास का फाइंड करेंगे। रिड्यूस मास और v², v क्या है हमारा यहाँ से, रिलेटिव वेलोसिटी, यानी दोनों, यदि ये इधर से इधर की ओर आ रहा है और ये मास हमारा इधर से इधर की ओर आ रहा है तो दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन कितना है वो। अच्छा, पहली बात है रिड्यूस मास की, तो ये क्या है, m, और ये क्या है, 4m। तो रिड्यूस मास का फार्मूला क्या होता है, m1m2, यानी m इंटू 4m डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और रिड्यूस मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4m डिवाइडेड बाई 5। ओके, सो म्यू की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो यहाँ से जो वी आर की वैल्यू आएगी हमारे √10 GM बाई आर। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करने के बाद जो हमें ओवरऑल वैल्यू मिलेगी वी आर की, इतनी मिलेगी, यानी ऑप्शन बी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी यही है, जी, 4g। जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या है हमारी, 4g m² बाई आर। सिंपल है ये, पे दे रखा है। तो काइनेटिक एनर्जी ये हो गया, नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बाथ ऑफ द पार्टिकल इज 0। हाँ, जो जैसे काइनेटिक एनर्जी हमारी कंजर्व होती है वैसे ही भी हमारी एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होगा। तो ऑप्शन डी भी क्या होगा हमारा राइट ऑप्शन, यानी इसमें सारे ऑप्शंस हमारे करेक्ट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दो सैटेलाइट S1 एंड S2 क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं किसी प्लेनेट के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, तो यहाँ से हम केप्लर्स लॉ लगाते हैं। ठीक, केप्लर्स लॉ, केप्लर्स लॉ हमारे क्या कहता है, केप्लर्स ये सेकंड लॉ है उसका ना। ओके, तो केप्लर्स लॉ जो कहता है वो कहता है जो टाइम पीरियड होता है रिवॉल्यूशंस का, उसका स्क्वायर इसके प्रोपोर्शनल में होता है उसके रेडियस के क्यूब के होता है। तो यहाँ से 1 हटा दूँ, हाँ, अब ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, T1² इक्वल टू T1² अपॉन T2² इक्वल टू R1²। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, रेडियस दिया है क्या, रेडियस, हाँ, S1 का रेडियस दिया गया, यानी R1² R1³ अपॉन R2³। ओके, तो यहाँ से T1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1। ठीक, और T2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 8। और यहाँ से R1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 10⁴ किलोमीटर, और R2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, R2 की वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ से
कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल, तो R2 की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो क्या होगा हमारा 4 इंटू 10 के पावर 4 किलोमीटर। ओके, सो R2 की वैल्यू मिल गई हमें। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें स्पीड और एंगुलर स्पीड, ठीक है, ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले स्पीड फाइंड करते हैं। तो स्पीड हमें दिया नहीं, तो इसके लिए टाइम पीरियड का हेल्प लेंगे। टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है 2πr अपॉन वी। ओके, तो यहाँ से v इक्वल टू क्या हो जाएगा 2πr अपॉन टी। तो यहाँ से रिलेटिव हमें क्या करना है, रिलेटिव स्पीड फाइंड करना है, यानी v2 माइनस v1। ठीक, ये क्या हो जाएगा 2π कॉमन है बाहर निकाल लेंगे, और ये क्या हो जाएगा r1 अपॉन t1 माइनस r2 अपॉन t2 माइनस r1 अपॉन t1। और ये हमें क्या मिलेगा 2π, और R2 की वैल्यू अभी हमने जस्ट फाइंड की 4 इंटू 10 के पावर 4। T2 की वैल्यू क्या थी 8 थी, माइनस R1 की वैल्यू क्या थी 10 के पावर 4, और T1 की वैल्यू 1 थी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा V रिलेटिव इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें टोटल पाई इंटू 10 के पावर 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, यहाँ से हमें V रिलेटिव भी मिल गया। अच्छा, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है V/R, तो हमें R फाइंड करना पड़ेगा, R रिलेटिव। तो R रिलेटिव इक्वल टू R2 माइनस R1, ये क्या हो जाएगा 4 था ये, और ये कितना था 1 था, और 10 के पावर 3 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू सॉरी 10 के पावर 4 ना, 10 के पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 के पावर 4 किलोमीटर। सो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा रिलेटिव ही निकालना है ना, हाँ, ओमेगा रिलेटिव इक्वल टू V2 V/R, V2 माइनस वेट अ मिनट V रिलेटिव अपॉन R रिलेटिव। तो ये क्या हो जाएगा पाई इंटू 10 के पावर 4 और डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 के पावर 4, और ये ओवरऑल क्या मिल जाएगा हमें ओमेगा रिलेटिव की वैल्यू π/3 रेडियन पर आवर। ओके, सो सारी चीज़ें मिल गई। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसका। ऑप्शन स्पीड, या ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है अर्थ को डिग किया जा रहा है और एक टनल बनाया जा रहा है। ओके, चलिए हम भी अर्थ को डिग करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले अर्थ बनाते हैं। ओके, तो ये हमारा कुछ रहा अर्थ जैसा। यहाँ से हमने क्या किया, इसको डिग कर दिया, खोद दिया, उसके आर पार चले गए। तो यहाँ पे उसका सेंटर है अर्थ का। ओके, तो ये रहा सेंटर, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी दी गई है r/2। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, और ये पॉइंट सी हो गया। यहाँ से हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा F। ओके, और क्या लगेगा साथ में इसके, ये डिस्टेंस हमारी x है। ठीक, और यहाँ से ये एंगल बनाया हमारा कितना थीटा एंगल बना दिया। ठीक, ये F है, तो ये क्या हो जाएगा F cos थीटा। अच्छा, अर्थ पे हम बैठे हैं तो नॉर्मल हमेशा अपवर्ड की ओर लिखता है। तो n इक्वल टू इस क्वेश्चन से हमें क्या देखने को मिला, n इक्वल टू F cos थीटा। अच्छा, इसके लिए f की बेसिकली वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, f की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे g, और मास ऑफ अर्थ हमारा मास, मतलब ये जो बॉल है बेसिकली उसका मास, और डिवाइडेड बाई r³ और x जो डिस्टेंस है वो। ठीक है, और cos थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ से r/2 है ये लेंथ, और डिवाइडेड बाई x। तो ओवरऑल n की वैल्यू क्या मिल गई हमें, नॉर्मल की वैल्यू g कैपिटल M स्मॉल m, ये m ही कह लेते हैं इसको, m/2r स्क्वायर, और ये क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसमें x की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, यानी जो नॉर्मल होता है वो हमारे x पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, तो ये तो नॉर्मल के लिए हो गया कहानी। ठीक है, अच्छा, हमें ओवरऑल क्या करना है, देखिए ये पॉइंट सी है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका 0, यानी पॉइंट सी पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से
हमारा एक्सीलरेशन क्या आ गया, 0। ओके, पॉइंट ए और बी पे एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे, आर होगी, ठीक, आर बाई एक्स की वैल्यू टोटल आर होगी। और यहाँ पे हमारा ये मैक्सिमम है, तो यहाँ से हमारा एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। यानी ऊपर जो पॉइंट आर है वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, और आर बाई टू पे हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आर बाई टू पे हमारा मैक्सिमम है, ये गलत है एक्सीलरेशन, ये भी गलत है, बिल्कुल गलत है। कांस्टेंट होना ही नहीं चाहिए, ये भी गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ पे बस आर बाई टू पे हमारा एक्सीलरेशन 0 है, और जैसे बढ़ा पॉइंट आर पे गया, ये क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर क्यूब का, और उसको क्या किया गया, वाटर और ऑयल की मिक्सिंग में डीप किया गया। तो जब डीप किया गया तो पूछा गया इस पे कि मास ऑफ ब्लॉक कितना होगा, ठीक है, और लिक्विड प्रेशर कितना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रा करते हैं। इस फिगर में क्या हमें बेसिकली बनाना है, ये हो गया हमारा, पहले पोर्शन कर लेते हैं, और ये हो गया हमारा ब्लॉक, ठीक है, जो 10 सेंटीमीटर क्यूब का है। अब क्या है, ये ऑयल हो गया पहला पोर्शन, और दूसरा पोर्शन क्या हो गया इसका, वाटर हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद इसका कहा गया है क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर ऑयल में रहता है और 2 सेंटीमीटर हमारा वाटर में रहता है, ठीक है। तो इस पे वेट लगेगा ना mg, और ये बैलेंस की कंडीशंस में है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। जो बैलेंस की कंडीशन में है, जो फोर्स होगा mg, वो किसके इक्वल होगा, वेट हमारा जो होगा वो हमारे, ये w इक्वल टू, वेट अ मिनट, ये जो w होगा, वेट होगा, वो हमारे ब्योंसी फोर्स के इक्वल होगा। और वेट क्या होता है, mg, ठीक है। और ब्योंसी फोर्स दो चीज़ों के कारण लग रही है, एक बी ऑफ ऑयल लगेगा और एक बी ऑफ वाटर लगेगा। तो ब्योंसी फोर्स की वैल्यू क्या होती है, ब्योंसी फोर्स की वैल्यू होती है रो जी बी। ओके, ओवरऑल जो कन्वर्ट करके फिर हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज, तो ये क्या आ जाएगा, 8 10 की पावर 2 इंटू रो ऑफ ऑयल, ठीक है। रो ऑफ ऑयल कितना है, रो ऑफ ऑयल है हमारा 0.8। अच्छा, इसको यहीं पे कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये क्या है, सीसी का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, ठीक है, पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का, उसको कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 2, ठीक, ऊपर जाएगा तो, ठीक है, सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट किए तो इतना मिलेगा ओवरऑल। ओके, चलिए, अच्छा, आगे क्या है, 0.8 हो गया ये, और जी साथ में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगला पार्ट 2 × 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई, ये क्या है, वाटर के लिए क्या होता है, बेसिकली वाटर के लिए होता है 1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा हमारा जी, जी से जी कैंसिल आउट। ओके, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 800 मल्टीप्लाई बाई 0.8 प्लस 200। ओवरऑल m की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 840 ग्राम। ओके, आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से प्रेशर की वैल्यू फाइंड करेंगे, और प्रेशर दो कारणों की वजह से लग रहा है, पी ऑफ ऑयल और पी ऑफ वाटर। ओके, तो पी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, रो जी एच। ओके, तो यहाँ से एच की वैल्यू दोनों में दी रखी है, पहले में कंडीशन में क्या दी गई है, 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक। और जी रो की वैल्यू क्या है, 0.8 और 10 की पावर 3 मीटर क्यूबिक था, इसीलिए मैंने ऊपर किया तो ये हो गया। और ये क्या हो गया, 9.8, और साथ में इसकी दे रखी है वैल्यू 2 है, और डिवाइडेड बाई 100। और सिमिलरली वाटर के लिए हमें पता है 1 × 10 की पावर 3, और ये क्या हो जाएगा 9.8 साथ में, ठीक है। फिर इसके बाद ओवरऑल जब हम पी कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 980 न्यूटन। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो आगे बढ़ते हैं।
इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक लार्ज ओपन कंटेनर है, ठीक है, और देखिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये लार्ज कंटेनर हो गया हमारा, ठीक। तो यहाँ से थोड़ा सा होल किया गया और इसमें से हमारा वाटर फ्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y थी। ओके, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ से v इक्वल टू, वाटर फ्लो किया तो v इक्वल टू √2g/, ठीक। अच्छा, तो यहाँ से मास ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग इन टाइम dt, तो ये कितना हो जाएगा a, और वेलोसिटी कितनी है इसकी v, ठीक है। उसके बाद रो हो गया इसका डेंसिटी, और ये क्या हो जाएगा dt। ओके, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ए दिया गया है, ए क्या है हमारा बेसिकली एरिया है, और एरिया दिया गया है, ये क्या हो रहा है, एरिया जो दे रखा है वो a/100 है। तो यहाँ से फोर्स यदि कैलकुलेट करें इस पे, ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। अच्छा, मोमेंटम क्या होता है mv, ठीक। तो मास हमें अभी जस्ट मिला है, ये क्या है av/ρ/dt, और मोमेंटम क्या है ये क्या होगा डिवाइडेड बाई dt और मल्टीप्लाई बाई v, ये हो गया हमारा मोमेंटम। तो ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा av², और यहाँ से रो, और ये हो गया हमारा फोर्स बेसिकली, ठीक है। तो v² की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, तो ये क्या है 2g/, तो ये क्या हो जाएगा a/2g/, और रो, ठीक। इसके बाद जो फोर्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, मास इंटू एक्सीलरेशन। जो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो सेम फोर्स ये अप्लाई करेगा, जितना फोर्स लगेगा बाहर निकलेगा, जितने फोर्स से वाटर बाहर निकलेगा उतना ही फोर्स क्या होगा कंटेनर पे अप्लाई होगा। तो यहाँ से हम मास ऑफ कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है, मास ऑफ कंटेनर न्यूटन्स के थर्ड लॉ से, ठीक है। जिस फोर्स से बाहर हमारा मास निकल रहा है, वो वाटर निकल रहा है, वही फोर्स सेम क्या करेगा अप्लाई करेगा वाटर टैंक पे। तो मास ऑफ कंटेनर इनटू एक्सीलरेशन। अच्छा, इसके लिए एक्सीलरेशन ये हमने वर्ड यूज कर लिया है, तो इसके लिए ए प्राइम कह देते हैं हम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा कैपिटल MA प्राइम। अब ए प्राइम इक्वल टू क्या हो जाएगा F/m। ओके, अच्छा, अब क्या हो रहा है कि मास ऑफ कंटेनर क्या है, कैपिटल M की वैल्यू भी साथ में निकाल लेते हैं। मास ऑफ कंटेनर क्या हो जाएगा ए, हाइट कितनी है इसकी कैपिटल Y, और ये क्या है रो। अब यहाँ से ए प्राइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी हमने एफ की वैल्यू निकाली है, एफ की वैल्यू क्या है a/2g/, रो, और इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ से पुट कर लेते हैं जस्ट कैपिटल M ना, वैल्यू पुट कर लेते हैं कैपिटल M की a/y रो। तो बाकी सब चीज़ें कट गई, तो फाइनली हमें क्या बचेगा, यहाँ से मिला g/50। ओके, तो आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, अच्छा 75% जब लिक्विड ड्रेन हो जा रहा है, यानी ए वाई रो 75% ड्रेन हो गया, यानी 25% बचा, यानी 25/100 ऑफ एम नॉट का इनिशियल, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, m0 डिवाइडेड बाई 4a रो, ठीक। इस समय जो वेलोसिटी होगी v इक्वल टू क्या हो जाएगा √2g/, यहाँ से जो निकाला है y अभी जस्ट वो पुट करिएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2g और m0 डिवाइडेड बाई 4a रो, और ये ओवरऑल हमें क्या मिलेगा अंडर द रूट, ठीक है, अंडर द रूट g m0 डिवाइडेड बाई 2
ए रो। फाइनल हमें यहाँ आंसर मिल गया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देयर आर टू होल्स ऑन अ वाटर टैंक as shown in the figure, area of the holes 2 is 2 times of the। अच्छा, यहाँ से हमें क्या करना है, बेसिकली A1V1 इक्वल टू A2V2 लगाना है। ठीक है, ये फार्मूला हमें लगाना है, बाकी सारी चीज़ें दी गई हैं तो पुट करते हैं यहाँ से। ओके, तो वेलोसिटी हम जानते हैं, वेलोसिटी यदि यहाँ से थोड़ा सा ड्रिल कर दिया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अंडर द रूट 2g, हाइट क्या है h। ओके, तो यहाँ से h2 कितना दिया गया है, ऊपर का पोर्शन यानी h1/4। ठीक है, तो यहाँ से वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v2 इक्वल टू v1/2। ठीक है, यहाँ से दिया गया है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, कैसे ये आ गया, क्योंकि A1 V1 इक्वल टू A2V2 होता है। ठीक है, इस इक्वेशन से आ गया। कैसे आया, रुकिए बता रहा हूँ मैं अभी। जस्ट A1V1 इक्वल टू A2V2। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, क्या हो रहा है कि एरिया ऑफ होल्स 2 इज 2 टाइम्स एरिया ऑफ होल्स 1। ठीक है, यानी ये A1 इक्वल टू क्या हो जा रहा है, इसको यदि हमने A1 लिया तो इसको A2 ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एरिया, एरिया को डबल कर लिया तो वेलोसिटी हमारी A1/A2 इक्वल टू V2/V1। यदि एरिया को डबल कर रहे हैं, यहाँ पे एरिया को डबल कर रहे हैं तो वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इसीलिए हमने यहाँ से ये इक्वेशन पुट कर लिया। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है कि हम जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, AV। Q इक्वल टू AV, और A1V1 इक्वल टू A2V2 होता है। तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इन एनी कंडीशन Q1 इक्वल टू Q2 फॉर ऑल कंडीशन। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो थैंक यू।